Now, with just one click, you can join my class. It's flexible. It's convenient. Wonderful and interactive. I love the class FAQs on Google Form. I love this virtual class. We just love our virtual Bible classes. We just love our virtual Bible class. We just love our virtual Bible class. You must join today. You must join today. Good morning, and it's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all and the viewers who are watching first time the Harvey Church online service. Your presence makes us very much happy. हम आशा करते हैं आप हमारे संदेश को हर हफ्ते देख रहे हैं और आप और आपका परिवार इन संदेशों के द्वारा आशीषित भी हुए हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने 2 मित्रों के साथ इस लिंक को अवश्य शेयर करें। Feel free to share any comments, prayer, request or testimony that might be on your mind in our online comment section. वचन कहता है भजन संहिता 147 का 1, याह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। So let us come and now worship our Lord with Brother Alvin Gaikwad and his team will lead us into the worship, and we believe that God's Spirit is going to bless us, and after that Reverend Dr. John Joseph will bring the word of God, and that I believe that God is going to speak to us today, and the word will change our thoughts, our lives and our thinkings. तो ये समय है आपके परिवार से कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे।
Praise the Lord, church. What a beautiful morning this is. As we worship this morning, let us just give Him thanks for everything He has done in our lives. For His grace, for His love, for His mercy, for this beautiful day, and tell Him, Father, we come before you today and we give you thanks and we say, thank you, Lord. Before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Give Him thanks. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you,
with a song of praise. We bless you. और हम कहते हैं मेरे खुदा कि धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति गाने पाए, क्योंकि तू मेरा सच्चा और जिंदा खुदावंद है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तो क्यों ना मेरे प्रियो ये सुंदर सा गीत गाए जो कहता है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you, Harvest Church Choir, for the wonderful worship. Now, this is the time to bring your tithes and offerings into the house of the Lord, because the Word of God says in Luke chapter 6, verse 38, "Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you." According to this word, when we give to the Lord, our Lord is ready to give abundant blessings. God loves cheerful giver, and it is very much important to give freely, wholeheartedly. There are two methods to give our offerings and tithes. One is online mode, and another one is offline mode. In online mode, you can see the bank details, account number and UPI number on the screen. In offline mode, you can collect your offerings at home and give it to your pastor whenever you get time. Now, this is the time to take your offerings into your hands as we are offering the prayer of thanksgiving. Shall we pray? Heavenly gracious Father, thank you, God, for this wonderful time. We came to your throne of grace, Lord. We bring our sacrifices and praise unto your presence, Lord, and we bring our tithes and offering to offer to you, Lord. Lord, bless each and every person, Lord, as they are giving their hearts and minds, Lord, to you. Lord Jesus, bless their food and water, bless their finances, and bless them with good health and healing, Lord, and bless their jobs and whatever they may do, Lord. Lord Jesus, we are humble ourselves unto your presence, Lord. I ask this small prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. I request our Harvest Church Choir to lead us with a special song as we are collecting offerings. Thank you. Praise the Lord. धड़कन पे तेरा ही नाम हो, एहसास की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, एहसास की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियान, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, एहसास की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं,
पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है क्यों तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश मेरी अब है यही, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बजा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। I usually had to spend 1 hour in commuting. But now, with just one click, you can join my class. It's flexible. It's convenient. Wonderful and interactive. I love the class FAQs on Google Form. I love this virtual class. We just love our virtual Bible classes. We just love our virtual Bible class. We just love our virtual Bible class. You must join too. You must join today. जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वंस अगेन एक संडे परमेश्वर ने दिया कि आज हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, उसकी आराधना, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। आज हार्वेस्ट चर्च इस ऑनलाइन सर्विस में और एक बार आपका स्वागत है। और मैं सोच रहा हूं कि आप इसके द्वारा आनंद उठा रहे हैं, आशीषित होते जा रहे हैं। और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में और दृढ़ करता जाए, मजबूत करता जाए। आज के क्वायर का हम धन्यवाद देते हैं भाई एल्विन गायकवाड़, पूरे टीम का, जिन्होंने बहुत आत्मिक रीति से परमेश्वर के गीतों में, आराधना में अगुवाई किया है। और भाई डैनी नेथानियल का धन्यवाद, आज आपने ऑफरिंग सॉन्ग में भी हमारी अगुवाई की है। आज ये 14th संडे हो गया है ऑनलाइन सर्विसेज का। 14 संडे से हम अपने चर्चेस में नहीं गए। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। आउट ऑफ द 52 संडेज 14
Sundays churches were closed and we are eagerly, anxiously waiting कब चर्च खुलेगा और हम वापस जाएंगे. अभी नेक्स्ट संडे जुलाई का फर्स्ट संडे आता है. आई एम स्टिल नॉट श्योर हम लोग चर्च सर्विस फिजिकल खोलेंगे या नहीं, परंतु जो भी है ऑनलाइन सर्विस तो चलता रहेगा ताकि इसके द्वारा जो लोग फिजिकल चर्च पे नहीं जा सकते हैं सो वो वचन को आप सुन पाएंगे. सो इसलिए होल्ड ऑन, हैंग ऑन ना, ऑनलाइन सर्विसेज चलता रहेगा. हम लोग प्लानिंग कर तो रहे हैं फिजिकल चर्च सर्विस को शुरू करने. हम देखेंगे वातावरण कैसा है, स्थिति कैसी है, आगे हम लोग फिजिकल चर्च भी शुरू करेंगे. आपको व्हाट्सएप के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी. आज 28 जून है और कल से हम लोग नया सेशन शुरू कर रहे हैं बाइबल क्लासेस का, कॉल्ड लाइफ चेंजिंग बाइबल स्टडीज़. हमारा पहला सब्जेक्ट आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ. ये लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का कोर्स लिया गया है और पूरा पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही पढ़ाएंगे हम लोग ना. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर से इसमें साइन अप करिएगा. ये जूम पर ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है, 1.5 घंटा क्लास एवरी मंडे एंड एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 4 o'clock to 5:30 PM. और अगर आपने इस टाइम पीरियड में नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप फेसबुक लाइव में जा करके भी देख सकते हैं. और उसके बाद रात के 10 बजे आप एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देंगे और उसमें आप अटेंडेंस उस दिन का मिल जाता है. आई विल इनकरेज ईच वन ऑफ यू टू जॉइन दिस क्लासेस. लाइफ चेंजिंग ये क्लासेस है, जीवन को बदल देते हैं. बहुत आशीष मिलेगी आपको. हिंदी में है और इंग्लिश आउटलाइंस भी आप मिलते हैं. जरूर से इसको भी आप ज्वाइन करिएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं. थैंक यू. हम परमेश्वर का धन्यवाद. संडे आफ्टर संडे आफ्टर संडे पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बोलता और बातचीत कर रहा है. आज का टाइटल एंड शीर्षक है परफेक्टिंग होलीनेस. पवित्रता में सिद्ध बनते जाओ. और की टेक्स्ट लिया जाता है 2 Corinthians chapter 7 verse 1 से, having therefore these promises dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. आज हमने हिंदी बाइबल रीडिंग के लिए बहन बीना सिंह से रिक्वेस्ट किया आप हमारी मदद करें. बहन रीटा चौधरी ने बहुत अच्छे रीति से अभी तक करते आए. हमने सोचा है और भी जनों को चांस दिया जाए. आज सिस्टर बीना सिंह अगुवाई करेगी. 2 Corinthians chapter 7 verse 1 रीड करिएगा. सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. सो पौलुस बता रहा है कि हमें ये प्रतिज्ञाएं प्रॉमिसेस दिया गया है. प्रभु अपने प्रतिज्ञा का पक्का है, जो बोलता है वो पूरा करता है. पर उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पवित्रता में सिद्ध बनते जाए. पवित्रता ऑफ द फ्लैश एंड ऑफ द स्पिरिट. अभी देखिएगा ये सब्जेक्ट ऑफ होलीनेस इज़ वेरी मच कॉम्प्रोमाइज दीज डेज. बहुत सारे लोग इस पर समझौता कर लेते हैं. आज बहुत सारे बुरे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जहाँ पर कुछ गॉडली लोग भी अशुद्ध काम में, अनैतिक एक्टिविटीज में लगे हैं, जिसके द्वारा द यंगर जनरेशन इज सो कंफ्यूज्ड अबाउट गॉड एंड द होलीनेस दैट ही डिजायर्स. जो पवित्रता वो चाहता है. मुझको एक पास्टर अमेरिका के पास्टर जॉन हेगी का लेख बहुत अच्छा पसंद आता है. पास्टर जॉन हेगी ने कहा, द गॉड दैट वी सर्व इज अ होली गॉड. द बुक दैट वी रीड इज द होली बाइबल. द स्पिरिट दैट वी हैव इज द होली spirit. The songs that the angels were singing in the heaven was holy, holy, holy Lord God Almighty. The place where we stand is holy grounds. और हम लोग जो रोटी तोड़ते उसको पवित्र प्रभु भोज बोलते हैं. हम लोग हाथ उठाते हैं तो होली हैंड्स उठाते हैं. ये परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है. और बाइबल कहती है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता है. इब्रानी 12 और 14 में कहता है, फॉलो पीस विथ ऑल मैन एंड होलीनेस without which no man shall see God. बिना इसके कोई परमेश्वर को कदापि न देख पाएगा.
पहला पत्रस 1 चैप्टर 15 कलम और 16 कलम कहता है, इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हिंदी में, बट एज ही विच हैज कॉल्ड यू इज होली, सो बी ई होली इन ऑल मैनर ऑफ कॉन्वर्सेशन। 16 वचन कहता है, बिकॉज इट इज रिटन बी ई होली फॉर आई एम होली। हिंदी में पढ़ देंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर ने बारंबार बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हूं, और उसने ये चाहा है कि हम भी उसकी संगति जब करते हैं तो हम पवित्रता मनाने पाए अपने जीवन में ना। तो इसलिए इस पवित्र परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए आपको पवित्र बनना बहुत जरूरी है ना। अब ये पवित्रता कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सजेशन सुझाव नहीं है, एक गुड आइडिया नहीं है, पर रिक्वायरमेंट है। ये पवित्र परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है, पर वो चाहता है कि हम एक पवित्र लाइफस्टाइल, होली लाइफस्टाइल, चाल चलन में, हर बातों में पवित्रता हम बनते जाए अपने जीवन में ना। देखिएगा, जब परमेश्वर ने इज़राइलिट्स को मिस्र से निकाला है ना, वो मिस्र में जब ये लोग रहते थे उनका चाल चलन मिस्रियों के समान हो चुका था, पर परमेश्वर ने इनको बाहर निकाला मिस्र से और जंगल में जाकर एक सेंचुरी बनाए जहां पर परमेश्वर उनके साथ निवास करता। ये होली गॉड चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ अलग होकर के संगति करने पाए। इवन अब्राहम को परमेश्वर ने अपने बाप के घर से बाहर निकाला और कहता है मैं तुझको आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर ने ये चाहा है कि हम दुनिया में से अलग हो जाए तो परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। 2 Corinthians chapter 6 में वर्स 17-18 में, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग। Wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. 18 वचन, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty। हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने जगह जगह बाइबल में चाहता है कि हम ना वो संसार में से बाहर आ जाए, तब परमेश्वर हमको ग्रहण करता है। अब इसका हम लोग गलत मतलब ना समझने पाए। ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग एक पहाड़ में जाकर कोई प्रीस्ट बन जाओ, कोई मॉन्क बन जाओ ना, सन्यासी बन जाओ और पर्वत पर जाकर अपना जीवन बिता, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं ना। पौलुस ने भी कहा, 1 Corinthians 5 और 9 में कहता है ना, I wrote unto you in the epistle not to company with fornicators, 10वां कलम, yet not altogether with the fornicators of this world, or with covetous, extortioners, idolaters, for then he must go out of the world। हिंदी में पढ़ दे। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पौलुस भी कह रहा है, अगर ऐसा जीवन आपको सब न लुचपन लालचपन से, मूर्ति पूजक लोग से दूर रहे, तो संसार के बाहर जाना पड़ेगा ना। देखिएगा, यीशु मसीह भी अपने जीवन में ना पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ उठता बैठता खाता पीता भी था ना। वो उनके साथ रहता था, पर उनके तौर तरीके नहीं अपनाया। आज हमको भी ना अन्य जाति लोगों के बीच में रहना पड़ता है। कुछ लोग खोटे काम करते हैं, हमको कुछ सहन बर्दाश्त करना पड़ता है, परंतु हम उनके समान काम नहीं करेंगे। ये परमेश्वर चाहता है। पौलुस ने कहा इफिशियंस 5 और 26 में कहता है ना, दैट ही माइट क्लेंस एंड सैंक्टिफाइड विद द वॉशिंग ऑफ वाटर बाय द वर्ड, दैट ही मे प्रेजेंट इट टू हिमसेल्फ अ ग्लोरियस चर्च, not having spot or wrinkles or any such thing, but it should be holy and without blemish। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक
न झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो परमेश्वर ने ये चाहा है कि हम पवित्र हो, कोई दाग नहीं, कोई धब्बे नहीं, कोई झुर्री हमारे बीच में ना पाए जाए। एक वैसी कलीसिया जो महिमा से भरी हुई है। और ये वचन के द्वारा परमेश्वर प्रतिदिन एवरी संडे आफ्टर संडे आफ्टर संडे हमको शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। मैं कहता हूं ये कार्य तो हम लोग आज जीवन भर हम करते जाएंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आ जाए। इसलिए आज का टाइटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, परफेक्टिंग होलीनेस। और ये लिया जाता है जो हमने पढ़ा 2 करंती 7 चैप्टर 1 कलम से ना, कि जब पौलुस बता रहा है कि ये प्रतिज्ञा हमको जो मिल चुकी है, इसलिए क्लेंस आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल फिल्दीनेस ऑफ द फ्लैश एंड ऑफ द स्पिरिट ना, देह की मलिनता और आत्मा की मलिनता। जो वर्ड फिल्दीनेस आया है इंग्लिश बाइबल में, या मलिनता आया, इसमें ग्रीक भाषा में जो लिखा है, क्लेंस योर सेल्फ फ्रॉम ऑल इमोरलिटी ना, क्लेंस योर सेल्फ फ्रॉम थिंग्स दैट आर डिस्गस्टिंगली डर्टी और कंटेमिनेटेड और दैट विच इज पोल्यूटेड विथ पॉइजन ना। पौलुस ये बता रहा है ना कि हमको हर एक प्रकार की देह की और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करते जाना है, हमारे आउटर मैन को भी और इनर मैन को। अभी आउटर मैन हम समझते हैं हमारे फ्लैश को बता रहा है ना, इनर मैन बोले तो हमारे स्पिरिचुअल साइड को बता रहा है। जैसे पौलुस ने बताया 2 करंती 4 और 16 में भी कहता है, फॉर विच कॉज वी फेंट नॉट बट दो आर आउटवर्ड मैन पेरिश येट द इनवर्ड मैन इज रिन्यूड डे बाय डे। हिंदी में पढ़ देंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखिएगा, अभी आउटर मैन का क्लेंजिंग तो हम सब जानते हैं कि हमको शरीर को स्नान की ज़रूरत है, हम साफ कपड़े पहनेंगे, हमारी बातचीत, भाषा, बोली होली होली होना चाहिए ना। और ये सब आउटर मैन के द्वारा हम तो कोई मनुष्य को इम्प्रेस कर सकते हैं। और देखिएगा, पुराना नियम बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट ज़्यादा करके आउटर मैन पर, ये बॉडी पर जोर दिया करता था। हमको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, कौन से रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वो न्यू मून है, फुल मून है, ये सब बातों में ज़्यादा जोर दिया करता था। और फरीसी लोग बाइबल में, ये जूस बहुत उस्ताद बन गए थे, हाउ दे कुड impress somebody with their holy garments और होली भाषा के द्वारा। यीशु मसीह ने एक बार इनको डांट के भी ये कहा, ये तो पुती हुई खबर है, बाहर से तो श्वेत लगता है परंतु अंदर से सड़ी हुई हड्डियां हैं ना। ओल्ड टेस्टामेंट ये बाहरी तौर से ज्यादा शुद्ध करता। बाइबल में लिखा है लूका चैप्टर 8 में एंड वर्स 11 में, यहां पर यीशु मसीह ने दृष्टांत देते कहा कि 2 जन मंदिर में गए और एक था जो फरीसी अपने आप को बहुत घमंड करता था और दूसरों को तुच्छ जानता था, और उसकी प्रार्थना यह थी कि मैं दूसरों के समान व्यभिचारी नहीं हूं, मैं खोटे काम नहीं करता हूं, मैं दशमांश भी देता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास भी कर देता है। देखिएगा, जब भी फरीसी शब्द बाइबल में आता है, वो कैटेगरी ऑफ लोग को जो अपने आप को धर्मी बोलते थे और बाकियों को तुच्छ जानते थे ना। ये फरीसी लोग बाइबल में अपर क्लास के लोग बन गए थे ना। ये ओल्ड टेस्टामेंट ये ज्यादा जोर दिया जाता था ना बाहरी तौर से अपने आप को शुद्ध करने। एक उदाहरण पाया जाता है जो जॉन चैप्टर 8 में वर्स 9 में ना, यहां पर एक स्त्री रंगे हाथ व्यभिचार में पकड़ा गई और मूसा ने कहा था ऐसियों को, स्त्रियों को बाहर निकाल के पत्थर से मार डालो ना। और ये लोग वैसी करने वाले थे, पर यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो निष्पापी है पहले पत्थर डाले। उसका 9 कलम कहता है, इंग्लिश में पढ़ दो, एंड व्हेन दे हर्ड इट बीइंग कन्विक्टेड और रिब्यूक्ड बाय देयर ओन कॉन्शियस went out one by one, beginning at the eldest even unto the last, and Jesus was left alone and the woman standing in the midst of them. परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई।
ये बड़े से लेकर छोटे, जो बड़े शब्द है मतलब जो फैरिसी से, जो सनहेड्रिन में जो 70 लोग वहाँ पर इजरायली कमिटी में पाए जाते थे, जो अपने आप को धर्मी समझते, बड़े से लेकर छोटे, मतलब दे वर ऑल कन्विक्टेड। बाहरी रूप से आउटर मैन तो बहुत होली दिख रहा है ना, परंतु इनर मैन उनका कमजोर था। इसलिए एक एक कर यीशु मसीह ने बहुत स्मार्ट आंसर बोला, तुम में से जो निष्पापी है। देखा जाए तो इस भीड़ में एक ही जन था निष्पापी, वो यीशु मसीह था। मतलब यीशु मसीह के पास अधिकार था पत्थर उठा करके इस स्त्री को मारने का, पर यीशु मसीह ने भी स्त्री से कह दिया, बेटी कुशल से चले जा, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को नाश करने बचाने के लिए आया। ओल्ड टेस्टमेंट बाहरी तौर से पाप दिख पड़ता था, अंदर से जो पाप था वो दिखाई नहीं देता था ना। इनर न्यू टेस्टमेंट इनर क्लेंजिंग पर जोर दे रहा है। इसलिए नंबर 1, परफेक्टिंग होलीनेस इन द फ्लैश एंड इन द स्पिरिट। ये कोई छूट नहीं मिल रही हमको कि आउटर मैन में कैसा भी जीवन हम बिताते जाए। इनफैक्ट पॉल ने यह भी कह दिया है गलेशियंस 5:19 में, यहां पर लिस्ट दिया, मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गलेशियंस 5:19, 20 एंड 21 डायरेक्टली आप हिंदी में प्लीज पढ़ देंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यहां देखा जाए तो एक्चुअली पौलुस ने 17 आइटम जिसको वर्क ऑफ द फ्लैश बोल दिया जाता है ना, ये सब शरीर की मलिनता हो गई, गंदगी हो गई, पाप हो गई। और 17 ही नहीं, पौलुस ने आगे कहा इत्यादि इत्यादि, ऐसा कुछ भी जो काम करता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज आवर गॉड इज अ होली गॉड। अभी ये आउटर मैन की हम सब जानते होंगे ना, मलिनता और गंदगी और इविल वर्क्स होता है, पर पौलुस ने एक बात बोला ना, क्लेंस आवरसेल्फ फ्रॉम फिल्दीनेस ऑफ द फ्लैश एंड ऑफ द स्पिरिट। आउटर मैन और इनर मैन की भी मलिनता से, गंदगी से शुद्ध करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो भीतरी मनुष्य को देखता है ना, हमारे मन के विचारों को पहचानता है, हमारे सपने क्या है, सोच क्या है, उसके तरफ में ध्यान दे रहा है। एक बार घटना लिखी है ना, 1 सैमुएल 16 चैप्टर और उसका 7 कलम पढ़ देंगे। 1 सैमुएल 16 चैप्टर 7 कलम हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहां पर सैमुएल गया था इजराइल के राजा को चुनने के लिए। यहां पर सबसे पहले उसने जैसी के सबसे बड़े पहले बेटे को एलियाब को देखा, ऊंचा तगड़ा था और सैमुएल उसको अभिषेक करने वाला था, परंतु परमेश्वर ने उसको बोला ना, ये वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जैसा मनुष्य देखता वैसा परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर तो भीतर ना मनुष्य के हृदय को, मन को जानता है। इस बातों पर मैं जोर देना चाहता हूं, ये बातों को हमको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। जो फिल्दीनेस शब्द मैंने बताया हूं ग्रीक भाषा में और भी उसके मीनिंग्स निकलते, इट मींस वाइल, वल्गर, ऑब्सीन, इमोरल, डिस्गस्टिंगली डर्टी ना, ये गंदी गंदी चीजों को देखना, छूना, खाना ना। इट ऑल्सो मीन्स टू कंटेमिनेट विथ पॉइजनस सब्सटेंस। हमारा जो स्पिरिचुअल साइड है इसको हम कंटेमिनेट ना करने पाए, इसको अशुद्ध ना करने पाए खोटी गंदी चीजों को देखने, खाने और छूने के द्वारा। देखो शैतान तो हमारे माइंड को बम्बार्ड कर रहा है विथ इवल थॉट्स, इवल इमेजेस, ऐसे ऐसे गंदी वीडियोस और तस्वीर दिखा करके जो डिस्टिंग्विशली, डिस्गस्टिंगली डर्टी होता है। आजकल इंटरनेट में तो ऐसी गंदी गंदी तस्वीर और वीडियो बड़े आम रीति से देखते जाते हैं लोग ना, और कैसे
बड़ी दुख की बात है, लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं ना। इसीलिए तो ना इंटरनेट में ये गंदी तस्वीरों का बिजनेस और इंटरनेट पोर्नोग्राफी, तो ये तो हाईएस्ट ट्रैफिक ड्रॉ कर रहा और ऑल्सो अर्न्स लार्ज रेवेन्यू। पर हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, क्रिस की आत्मा डाली गई है। पहला करंती 6 और 9 में लिखा है ना, जब हम जो परमेश्वर में हैं, अब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ में एक हो गई, जुट हो गया है, जुड़ गई है। वी आर वन स्पिरिट विद गॉड। गॉड इज अ स्पिरिट ना। जॉन 4:21 में लिखा परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर जब हमसे बातचीत करेगा तो अपने वचन के द्वारा बातचीत, अपने पासबान पास्टर के द्वारा बातचीत कर, कोई विश्वासी भाई बहन के द्वारा बातचीत कर, कई बार कोई प्रॉफिट के द्वारा, कई बार कोई ड्रीम्स, विजन्स, कोई ऑडिबल वॉइस आपने सुना होगा, कोई इमेजिनेशन थॉट्स और इवन डे टू डे इवेंट्स। दैट्स हाउ अ स्पिरिट विल टॉक। स्पिरिट जब बातचीत करता है, हमको दिखता नहीं है, शायद डायरेक्टली सुनाई भी ना आए ना, परंतु हमको विजन्स के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, विचारों के द्वारा। अभी गॉड इज अ स्पिरिट, और मैं कहना चाहता हूं डेविल इज ऑल्सो अ स्पिरिट। वो तो गिराया हुआ दूत है, स्वरदूत लोग भी स्पिरिट्स है ना, और उस शैतान के साथ उसके जितने फॉलन एंजल्स है, ये भी स्पिरिट्स है। इसलिए शैतान के पास ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी है कि वो भी मन में विचार डाल सकता है, खोटे सपने डाल सकता है ना, कोई इमेजिनेशन, कल्पनाएं डाल सकता है ना। जैसा परमेश्वर काम करता है वैसा शैतान भी काम करने की कोशिश करता है, पर शैतान का काम हरदम विपरीत रहता है, उल्टा रहता है ना। ये हमारा मन आजकल के दिनों में एक बैटलफील्ड बन गया, युद्ध भूमि बन गई है ना। हम लोग एलसीयू बाइबल क्लास में भी ये रिफर करते हैं, जॉयस मायर का किताब है द माइंड इज द बैटलफील्ड, माइंड इज द बैटलफील्ड ना। उसमें बहन जॉयस ने बहुत अच्छा लिखी उसमें कि कैसे शैतान और परमेश्वर आपके मन को कब्जा करने के पीछे लगा रहता है ना। बोथ आर फाइटिंग टू कैच योर अटेंशन ना। कुछ शैतान भी कुछ विचार डाल रहा है, परमेश्वर भी डाल रहा है ना। जो परमेश्वर बोल रहा है, शैतान का काम है उसका विपरीत, या आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे कि आपको क्लियर सुनाई ना आने पाए। मैं आपके सामने में कुछ एक दो उदाहरण दूंगा जहां पर ना शैतान ने कोशिश किया है, परमेश्वर के लोगों के मन में कुछ विचार प्रभु बातचीत कर रहा है, परंतु उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहता था। एक उदाहरण जैसे एलिया के जीवन में लिखा है। एलिया को परमेश्वर ने कहा उस चट्टान पर खड़े हो जा, मैं तुझसे बातचीत करूंगा, परंतु वहां लिखा है ना, ये 1 किंग 19 चैप्टर 11 का रेफरेंस मैं ले रहा हूं ना, और वहां लिखा है कि एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ ना, बहुत बड़ी हवा चली वहां पर ना, अर्थक्वेक आया, एक फायर वहां पर गिर पड़ा, पर द लॉर्ड वाज नॉट इन द अर्थक्वेक, लॉर्ड वाज नॉट इन द ग्रेट विंड ना, और अग्नि भी गिरी थी पर परमेश्वर उसमें नहीं था। पर उसके बाद में एक स्टिल स्मॉल वॉइस ना, धीमी सी आवाज के द्वारा परमेश्वर ने एलिया के साथ में बातचीत किया ना। परमेश्वर वो भूकंप में नहीं था, वो बड़ी आंधी में नहीं था, वो फायर जो गिरी थी उसमें भी नहीं था। अगर परमेश्वर नहीं था तो कौन था? संसार में दो ही सामर्थ काम करती है, एक तो परमेश्वर की सामर्थ और एक अंधकार की सामर्थ, शैतान की शक्ति। मतलब शैतान ने बहुत कोशिश किया कि परमेश्वर की वो स्टिल स्मॉल वॉइस को ना वो बुझा दे, वो आवाज, वो डिस्ट्रैक्शन के द्वारा। शैतान का ये काम है ना, उसने तो अग्नि भी बरसा दिया। देखो एक और एक एग्जाम्पल, जब जोब के लाइफ में लिखा है ना, ही वॉज अ मैन हु फियर्ड गॉड, बुराई से दूर रहने वाला, एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द ईस्ट, ये भी लिखा है। परंतु हम जानते हैं, अभी पूरा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा ना, परमेश्वर ने जब इजाजत दी तो शैतान ने जाके आक्रमण किया, और वो आक्रमण में क्या हुआ कि वो एनिमीज जो सीबियंस थे, उन्होंने आकर के उसके सब ना नौकर चाकर को कैप्टिव लिया, मार भी डाला। ऊपर से अग्नि गिर गई ना, चाल्दियंस आ गए, उन्होंने भी उसके कैमल्स को सब मार के चुरा के ले गए, और बाद में बड़ी भारी हवा आंधी आई, जिस घर में उसके लड़के बालक थे उसको ऐसा हिलाया पूरा घर गिर गया, सब लोग मर गए। ये सब शैतान का काम था, ये परमेश्वर का काम नहीं था।
परमेश्वर तो बचाने को आया, वो जीवन देने को आया, वो चंगाई देने को आया, पर शैतान ये बुरे बुरे काम करा। तो दो इंसिडेंट सबको मिल रहे। एलिया के भी लाइफ में अर्थक्वेक आया, फायर गिर गई, बड़ी आंधी आया। जोब के भी लाइफ में कितना नुकसान, ये सब शैतान का काम था। शैतान का काम है दुनिया में बुरी काम करना ना। क्यों ना आजकल हम सुन रहे कोरोना वायरस से कितने लोग मर गए, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा, वाइड स्प्रेड लोकस्ट अटैक आ गया, अर्थक्वेक्स जगह जगह हो रहे, फैमिन्स हो रहे, लॉकडाउन में लोग जॉब्स लूज कर रहे। शैतान का काम ही है चोरी करे, घात करे और नाश कर दे। ये सब शैतान, दीज आर नॉट एक्ट्स ऑफ गॉड। पर अफसोस की बात है, वही जोब 116 में लिखा है, जब लोगों ने आके जोब को बताया कि सीबियंस आए और ऊपर से परमेश्वर की ओर से अग्नि गिरी, उनका यह कहना सोच था कि फायर जो गिरी ये गॉड से गिरा। गॉड से नहीं गिरा, ये तो शैतान का काम था ना। यीशु मसीह ने भी कह दिया लूक 9:56 में, मनुष्य के पुत्र लोगों के जीवन को नाश करने नहीं आया परंतु बचाने के लिए आया ना। वो जो चेले जेम्स एंड जॉन थे, वो लोग चाहते थे अभी आग बरसा देंगे और पूरा समरी को भस्म कर देंगे ना। यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम में कौन सी आत्मा है। आत्मा बोला ना, वो जो बैड स्पिरिट है, शैतान वाली आत्मा है, वो तो नाश करने वाली आत्मा। पर यीशु मसीह ने कह दिया मनुष्य के पुत्र नाश करने नहीं आया वरन बचाने आया, बचाने आया ना। मैं जो बात बोल रहा हूं आपको ना, शैतान कैसा डिस्ट्रैक्शन लाएगा आपके माइंड में ना। आपके माइंड में परमेश्वर कुछ बोलना चाह रहा है पर शैतान कुछ उसमें डिस्टर्ब आपको कर देगा। आपको आवाज सुनाई नहीं आएगी, आपको बात याद में भी नहीं रहेगी ना। देखो जैसा मोसेस भी जब फेरोन के सामने में खड़ा हो गया था, चिन्ह बताया, वहां पर लाठी सांप मर गया ना और पानी उंडेला और वो भी लहू बन गया। एंड द मैजिशियंस ऑल्सो ने ऐसा कर दिया। ये करने से फेरो भी कंफ्यूज्ड हो गया, मैं नहीं जाने दूंगा। शैतान आज वही काम कर रहा है। एक्ट्स चैप्टर 13 में 13 चैप्टर में भी पौलुस वहां कैप्टन को सुसमाचार सुना रहा, विश्वास कर रहा, पर एलिमास नाम के जादूगर ना, वो जो प्रचार हो रहा है उसको पल्यूट कर रहा है, उसको वहां पर विरोध कर रहा है कि ये सूबेदार विश्वास ना करने पाए। मैं जो बात बता रहा हूं, आप जब बाइबल खोलेंगे, आप जब ये संडे सरमन सुनने बैठेंगे, उसी समय शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर देगा ना। उसी समय कोई डोरबेल बज जाएगी ना कि आपका ध्यान ना लगने पाए प्रभु के वचन। यीशु मसीह ने एक बार दृष्टांत देते ये भी कह दिया बीज बोने वाले का कि वो बीज जब बोया गया, पक्षी ने आके चुरा कर लेकर के चले गए। और वो पक्षी क्या है उसने बताया, ये डीमंस है, ये वचन को चुरा लेते हैं। शैतान आपके माइंड को, इसलिए जॉइस मेयर ने भी जो किताब में शेयर किया ना, द डेविल एंड इवन गॉड इज आफ्टर गेटिंग योर अटेंशन ऑफ द माइंड ना, कि कहीं ना कहीं ना आपका ध्यान खींचने में परमेश्वर कुछ कहना चाह रहा है। और इसलिए जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब मैं ये आज का सरमन को प्रिपेयर करता हूं ना, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझसे बोल, बातचीत कर प्रभु, वचन के द्वारा मुझसे बोल। मैं जल्दी से उसको नोट भी कर लेता हूं, क्योंकि हम लोग सब है होशियार पर इतने होशियार नहीं है कि 2 दिन बाद और लास्ट संडे क्या प्रचार हुआ वो भी याद रख सके। इसलिए अच्छा होता है कुछ बातें अच्छी लगेगी हम जल्द से उसको नोट कर लेते ना, उसको वापस पढ़ते जाते ताकि माइंड में वो उतरना चाहे ना। इसलिए माइंड को ना प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। शैतान वो कड़वे बीज बो देगा, डिस्ट्रैक्शन ले आएगा ना, आपका ध्यान भटकाने को। पत्रस ने भी एक बार कह दिया, पहला पत्रस 1 चैप्टर और 13 कलम में कहता है, वेफोर गर्ड अप और सिक्योर और इनसर्कल अप लॉयंस ऑफ योर माइंड, बी सोबर एंड होप टू द एंड फॉर द ग्रेस दैट इज टू बी ब्रॉट अनटू यू एट द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। पत्रस बता रहा है कि माइंड का कमर कस के बांध लो ना, ताकि जो रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट तुमको मिल रहा है वो खोने ना पाए। क्योंकि अगर आपने अपना माइंड को खुला छोड़ दिया है, जैसे कि एक दूध के बर्तन को आप ढाकेंगे नहीं तो मक्खी गिर सकती है ना उसमें
ना, वैसे माइंड को अगर आपने ओपन रख दिया है ना, आप मोबाइल फोन में भी देख रहे हैं, बाइबल भी पढ़ते जा रहे हैं, आप उसको हेलो भी बोलते जा रहे हैं, चर्च में बातचीत भी कर रहे हैं, सरमन भी ना, आपके माइंड में शैतान तो कड़वा बीज बो देगा। इसलिए पूरे ध्यानपूर्वक गर्ड अप, मीनिंग टू सिक्योर, इनसर्कल और इवन सराउंड योर माइंड केयरफुली, कि उसमें कोई और खोटी बात वस्तु इसमें पल्यूट ना करने पाए, जो बातें परमेश्वर ने बोला है। क्योंकि हम जो कुछ भी ना एक्शन करते हैं, इट ऑल स्टार्ट्स विथ अ थॉट, एक विचार आया मन में। आज सुबह भी आपने ये सरमन भी सुन रहे हैं क्योंकि आपने माइंड में पहले फैसला किया ना कि मैं सुबह उठ करके ये ऑनलाइन सरमन देखने वाला हूं ना, देयरफॉर यू कुड कम एंड फुलफिल दिस एक्शन। हर एक एक्शन जो भी हम करते हैं, पहले माइंड में एक थॉट आता है, वो थॉट एक ना एक दिन विल बेयर फ्रूट, इट विल जर्मिनेट और एक्शन को प्रोड्यूस करने वाला है ना। इवन यीशु मसीह ने भी कह दिया, समय नहीं पढ़ना है, मत्ती 5 में और 27 में ना कहता है, पुराने नियम में लिखा है, मोसेस ने कहा व्यभिचार मत करना, पर मैं कहता हूं जिसने स्त्री को खोटी नजर से देखा ना, तो मन में उसने व्यभिचार कर चुका है। माइंड ने एक्सेप्ट कर दिया, अभी बॉडी में नहीं हुआ, एक थॉट के द्वारा हुआ ना। जो भी बातों पर आप ध्यान लगाते हैं, वो धीरे धीरे कर करके ना वो आगे थॉट एक बेयर फ्रूट्स करता है, एक्शन प्रोड्यूस करता है, और एक ना एक दिन खोटे काम आपके शरीर के द्वारा हो जाता है। इसलिए आपको मन की सुरक्षा करना बहुत जरूरी। जब हम परफेक्टिंग होलीनेस की बात कर रहे हैं ना, शरीर का होलीनेस तो हम लोग सब जानते हैं ना, परंतु मन को भी शुद्ध करना बहुत जरूरी है ना। वो खोटे विचार, बुरे सपने अगर आते भी है, तुरंत निकालना बहुत जरूरी है। यीशु की लहू बोलिए, यीशु की लहू की जय जयकार करिए, वो नेगेटिव थॉट्स को हम दूर करने पाए। इसलिए पौलुस बता रहा है कि ये सब ऊंची बातों को, कल्पनाओं को ना, जो परमेश्वर के वचन के विरोध की, उसको हम ढा दे, गिरा दे, उसको गेट आउट करने पाए। सो आपको माइंड में जो विचार आ रहे उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी होगा। कई बार लोग कहते हैं ना, मैं वो कार्य तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सपना ले रहा हूं, और वो खोटी तस्वीर देखने से क्या हुआ, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। ये सब वीडियोस, तस्वीर, बातों को इमेजिनेशन मन में अगर आप ला रहे हैं, एक दिन वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो कार्य होने ही वाला है। इसलिए बहुत जरूरी होता है मन के विचार को भी उठा के हम फेंक देने पाए। पौलुस ने आगे ये भी कह दिया रोमन्स चैप्टर 12 में और 2 कलम में ना, कि अपने मन को नया करने के द्वारा परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को हम पहचान सके। रिन्यू योर माइंड्स, रिन्यू योर माइंड्स। परफेक्टिंग होलीनेस में आपको आपके मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी होगा ना। इसलिए एक ये चुनौती है, एक चैलेंज है आज हमारे सामने में। परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है ना, हमारे साथ रोज रोज वो उसकी धीमी सी आवाज से बातचीत करना चाहता है। पर अगर आपका माइंड पॉल्यूटेड है, खोटे विचार है, बुरे सपने आप लेते जाते हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। ये शैतान के तरकीब, इरादों से हम बहुत सावधान रहने पाए ना। इसलिए जो जो बातें परमेश्वर के वचन की विरोध की, उसको हम ढा दें, उसको हम गेट आउट कर दें, उसको मन में भी प्रवेश ना करने पाए ना। इविल थॉट्स, इविल डिजायर्स, और आजकल जवान कितने शिकार हो गए हैं ना इंटरनेट की गंदी गंदी तस्वीर और वीडियोस के द्वारा ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहीं भी अपने बीच में एंटरटेन ना करने पाए। एक पवित्र जीवन बिताना बहुत जरूरी है। मैं आगे आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं, फिर समाप्त करूंगा। मैं इब्रानी 12 और 14 को फिर से पढ़ देना चाहता हूं ना। यहां पर वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देख पाएगा ना। नो मैन शैल सी गॉड विदाउट होलीनेस, विदाउट होलीनेस। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे मन के विचार को दूर से ही पहचान लेते हैं पिता। प्रभु हमारी प्रभु मन को शुद्ध कर दे पिता, कोई खोटे विचार भी प्रवेश ना करने पाए प्रभु। कोई लोग जो
अपने जीवन में एक चुनौती लड़ रहे हैं पिता प्रभु जी, खोटी तस्वीरों के साथ में, खोटी वीडियोस के साथ में, आप उनकी सहायता कर, मदद कर पिता। यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु उनके मन को भी शुद्ध कर दे, उनके सपनों को भी शुद्ध कर दे। तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी उनके मन को, विचारों को तू पवित्र कर दे पिता प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते, आज हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया और क्रीस की आत्मा आज यहाँ निवास करती है पिता। हम जानते तू पवित्र परमेश्वर है, हम सभी को तू दिन प्रतिदिन पवित्र बनाते जा। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते, आमीन आमीन। अभी परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ आज से लेकर मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।